going to answer some of the questions that have come to us. और कुछ प्रश्नों का उत्तर मैं देना चाहता हूँ जो मेरे पास आए। Very briefly. Very short, very short. बहुत जल्दी से संक्षिप्त में। What is the question here? What if I don't marry and adopt a child and teach him or her the path of Jesus? Is that possible? और प्रश्न ऐसा आया कि क्या होगा यदि मैं विवाह न करूं लेकिन बच्चे को मैं गोद लूं और उसे यीशु मसीह के रास्ते के बारे में सिखाऊं, उसे पालन पोषूं। Now, if this you cannot do this, if you will, like many advanced women in the world, if you use your egg and join it with some other man, you're not married to, you're single, and then bring about a baby, that is sin against God. यदि आप अकेले हैं, सिंगल पेरेंट हैं और आप you're a single woman, आप एक अकेले महिला हैं and with your egg in your body, और आपके शरीर में जो अंडे हैं you join it with some other man through modern technology. और आज के जो आधुनिक तकनीक के द्वारा किसी अन्य पुरुष के द्वारा उसमें You don't marry that man, आप उनसे विवाह तो नहीं करते but हैं, a child is born in test tube or through a surrogate mother. लेकिन उस तकनीक के द्वारा आप एक टेस्ट ट्यूब के द्वारा सेरेब्रस के द्वारा आप मां बनती हैं। You don't get married, आपने विवाह नहीं किया and you have that child. लेकिन आपने उस बच्चे को प्राप्त किया That child is 50% yours, और वो बच्चा तो 50% आपका है and you want to raise that child और आपने उसे लाया without husband, और आपने उसे बिना पति के लाया, without marriage. बिना विवाह के लाया That is against the word of God. और ये तो पवित्र शास्त्र के खिलाफ तो वो गलत हो जाएगा। But the Bible says in the book of Galatians, लेकिन बाइबल गलती की पत्री में ऐसा कहता है it is never wrong to do a good thing. और भले काम को करना गलत नहीं है। So definitely adopting a child is a good thing. तो निश्चित रूप से एक बच्चे को गोद लेना अच्छी बात है, So that you can do. वो आप कर सकते हैं। The second question, और दूसरा प्रश्न, is it important to marry a person क्या ये शादी करना ये महत्वपूर्ण है किसी ऐसे व्यक्ति who is from the church you belong to? Who is from the church you belong to? जो चर्च से ही आते हैं, बिलोंग करते हैं, Can that person be not from some other church or mission? और क्या वो व्यक्ति दूसरे मिशन दूसरे कलीसिया के नहीं हो सकते? Even if he is a believer, is it necessary to choose from the same church or same mission? तो विश्वासी होने के कारण क्या अपनी कलीसिया से और अपनी मिशन से जीवन साथी का चुनना जरूरी If है? I'm a Pentecostal, should I marry only a Pentecostal? क्या एक पेंटेकोस्टल को सिर्फ पेंटेकोस्टल के साथ ही विवाह संबंध करना It's a चाहिए? good question. ये अच्छा प्रश्न है। The Bible says in Amos chapter 3 verse 3, और आमोस की पुस्तक 30 अध्याय 30 पद में बाइबल कहती the है, Bible says, बाइबल कहती है, can two people walk together unless they are agreed? जब तक दो व्यक्ति सहमत ना हो वो आगे नहीं जा सकते। Marriage is a walk in life together till the rest of your life. और विवाह जो है ये दो जन मिलकर आगे बढ़ने के साथ जीवन का एक इस तरह का संबंध है। So it's important to marry someone with the same passion you have for Jesus. The person you marry should have the same passion. इसीलिए ये जरूरी है कि जिस व्यक्ति से विवाह करे उसके अंदर भी वही धुन वही जोश मसीह के प्रति हो। And if that person is from another denomination or another mission, और यदि वो व्यक्ति किसी अन्य डिनोमिनेशन या दूसरे मिशन के हो but has the same passion for Jesus as you have, लेकिन जो धुन और जो जोश आपके अंदर यीशु के प्रति है I would say it is not wrong to marry that person. और उनके प्रति भी है तो ऐसे व्यक्ति से विवाह करना मैं कहूँगा गलत But नहीं। even then, I would say you consult with your pastor, consult with your spiritual elders, because of your romantic interest, may judge things biasly, but elders will see things balanced and correctly. लेकिन इसके बावजूद मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप ऐसे अपने जो इस तरह के रोमांटिक बातों के प्रति या झुकाव के प्रति जाने से पहले आप सबसे पहले अपने पासवान से या प्राचीन से आप सलाह जरूर ले लें। Okay, if God created humans in His image,
wife be like brothers and sisters? तो जो पति और पत्नी भाई और बहन की तरह क्यों नहीं हो सकते? A husband and wife cannot be like brothers and sisters. और एक पति और पत्नी भाई और बहन की तरह नहीं हो सकते। The Bible is very clear. बाइबल बिल्कुल स्पष्ट है। In Proverbs chapter 5 verses 18 and 19. नीतिवचन 5 का 18 और 19 पद में, In 1 Corinthians chapter 7, the first few verses. और पहला कुरिन्थियों अध्याय 7 के पहले कुछ वचनों में, The Bible, God commands that there will be sexual relationship between a man and his wife. और बाइबल इस बात की आज्ञा देती है कि जो यौन संबंध हो वो पति और पत्नी के बीच में, पुरुष और स्त्री के बीच में। God commands there will be sexual relationship between husband and wife. परमेश्वर की आज्ञा है कि पति और पत्नी के बीच में यौन संबंध हो। In fact, God put an entire book in the Bible to teach that. और दरअसल पूरे बाइबल में आप इस विषय की शिक्षा को पाएंगे। That book is called Song of Solomon. और बाइबल की एक पुस्तक का वो है श्रेष्ठ गीत। And in that book, और उस किताब में we read about a husband, वहाँ हम एक पति के बारे में we पढ़ते read हैं, about a wife, हम एक पत्नी के बारे में पढ़ते and they हैं, have sexual relationship और with each other. उनके बीच के यौन संबंध के बारे में हम देखते हैं। And that is part of God's plan. और ये तो परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा है। To have a marriage where there is no sex, but you are like brother and sister, goes against the written word of God. और लेकिन यदि आप विवाह में हैं लेकिन उसमें यौन संबंध नहीं है, आप भाई और बहन की तरह रह रहे हैं, तो ये भी परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाता है। Okay, another question we have here. ठीक है, एक और प्रश्न यहाँ पर है। Why did Jesus select me? क्यों प्रभु ने मुझे, यीशु ने मुझे चुना नहीं? Why did Jesus select me? यीशु ने क्यों मुझे चुना है? It's a very good question. ये अच्छा प्रश्न है। You have to have asked that question till you die and till you go to heaven. You have to keep on asking that question. और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न को आप पूछते रहना है जब तक कि आप स्वर्ग नहीं जाते हैं, भगवान नहीं जाते। Because क्योंकि that keeps you humble. और क्योंकि ये प्रश्न आपको नम्र बनाएगा। You have understood it correctly. आप इसे सही तरह से समझ पाएंगे। As John 15 and verse 16 says, और यूहन्ना 15:16 पर ऐसा कहता है, we did not choose Jesus. हमने यीशु को नहीं चुना, Jesus chose us. यीशु ने हमें चुना। And John 15 and 16 gives us a reason why Jesus chose us. और वहाँ उस पद में एक कारण दिया गया है चुनने की वजह, And that is your question. और वही हमारा प्रश्न है। That is so that you can bear fruit. और ताकि आप बहुत सारा फल लाएं। I really appreciate the ministry of Anand Suresh. Pastor Suresh. और मैं सचमुच बस सुरेश की सेवकाई की सराहना करता हूँ। God has placed him in this part of India. और परमेश्वर ने उन्हें भारत के इस क्षेत्र में रखा है। God has chosen him, और परमेश्वर ने उनको चुना है। and according to the word of God, और परमेश्वर के वचन के अनुसार he is bearing fruit. वे फल ला रहे हैं। And that is why we have a conference like this with 500 young people. और इसी का कारण है कि इतने सारे जवान को लेकर इस तरह के कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं। So why did God choose you? तो क्यों परमेश्वर ने आपको चुना? So that you can bear fruit. ताकि आप फल लाएं। You know, there are people whom God chose, और जानते हैं लोग ऐसे हैं जिनको परमेश्वर ने चुना but है, they didn't bear fruit. लेकिन उन्होंने फल नहीं लाया। Don't be like that. आप उनकी तरह मत बने। Judas was like that. यूहन्ना ऐसा ही था। Jesus prayed entire night. Luke chapter 6, 12 and 13. He prayed the entire night and he chose 12 disciples. Judas was also chosen. लूका 6:12 में यीशु मसीह ने सारी रात प्रार्थना की और यूहन्ना को भी चुना था। But Judas was a lover of money. लेकिन यूहन्ना तो उसको रुपये का के प्रति प्रेम था। So the reason why God chose, he frustrated or he stopped. लेकिन जब उसको पता चला यीशु का चुनने का कारण वजह, तो वो अंदर से नामुस हो गया और वो वहाँ पर सब कुछ छोड़ दिया। So because God chose you, you must bear fruit. और इसीलिए जब परमेश्वर ने आपको चुना है, आप जरूर से फल We have a लाएं। Hindi question. और हमारे पास एक हिंदी प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार आया है, मैं लड़कियों की तरफ ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन मेरे दोस्त देखने बोलते हैं और जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ भी यही सब होता है। बड़े भैया हो या कोई भी मुझे भी शामिल करते हैं, तो मैं बुरी संगति से कैसे बचूं?
कि हमें उन सब के बीच काम करना होता है। Okay, I understand. This young man is not wanting to look at girls, but he's in a place of work where the friends force him to look at girls. ठीक, मैं समझा कि ये जो जवान भाई हैं एक ऐसी जगह पर काम करते हैं जहाँ पर उनको दबाव दिया जाता है कि लड़कियों की तरफ देखा करें। The Bible says in Exodus chapter 23, और बाइबल बताती है नीति वचन निर्गमन पुस्तक 23, उसका 23 the अध्याय first two verses. पहले दो वचन, Do not follow the crowd in doing wrong. और जो भीड़ जो गलत बातों को करते हैं उनके पीछे मत हो। So, in the place of work, they would do this wrong and many other wrongs. और जैसे जिस स्थान पर वो रहते हैं इस तरह की गलतियां या और भी कई तरह की गलतियां But वो you करें। must dare to be different, and that's my message this day. लेकिन आपके अंदर एक हिम्मत होनी चाहिए कुछ अलग करने के लिए। Alright, so shall we start the word of God? ठीक है, तो हम लोग परमेश्वर के वचन पर जाएंगे। Thank you for the blessings. Okay, shall we pray and ask God to speak to us? ठीक है, हम प्रार्थना